Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Brain Root series, and here is a book children, AI Artificial Intelligence. Children, today we are going to start a new chapter which is chapter number 5 of your book, and the name of the chapter is Microsoft Make Code Arcade. So let's see what's in this chapter. So here we are going to learn about coding. We will learn what is programming language. We will learn what is an algorithm, what is flowchart. Next is pseudocode, block coding, first program, variables, arithmetic operators and assignment operators. So these topics we are going to cover in this chapter. So I hope you are excited learning it. So the first topic is coding. आजकल आपने देखा होगा कोडिंग जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है. So what is it? So a set of instructions that perform some actions is referred to as code. ऐसे कुछ group of instructions जो क्या करते हैं, कुछ actions को perform करते हैं, उन्हें हम code या फिर program कहते हैं. And the process of writing instructions to solve a problem or perform a specific function on computer is known as coding or programming. ये जो process होता है इन programs को लिखने का, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, coding या फिर programming कहते हैं. So a person who writes the code is called a programmer or a coder. A programmer or coder use different techniques. ये अलग अलग techniques को use करते हैं to solve problem को solve करने के लिए. Imagine that a video is playing on your smartphone. आप ऐसा सोच के देखो कि आपके जो स्मार्टफोन है उस पर एक वीडियो चल रही है. Your phone is similar to a computer. और आपका फोन कंप्यूटर जैसा ही है. It needs to be told what to do. आपके फोन को भी सब चीजें बतानी होती है, उसे क्या करना है. This instruction is given by the application that plays the video. ये जो instruction कौन देता है, वो application देता है जो वीडियो को play करता है. But how does the application provide instruction? ये जो application है instruction कैसे provide करता है? It accomplishes this through coding. और ये सब कैसे होता है, ये applications जो भी instruction देते हैं वो coding के through ही होता है. Now, what is a programming language? Giving instructions to a robot, machine or a computer is just like how to communicate with others. So, instruction देना किसी robot को, किसी machine को या फिर computer को, ये कैसा है? Means दूसरों के साथ बात करने जैसा है. All human interactions are mediated by languages. जितने भी human interaction है उसका medium क्या है, language है यहाँ पे. In the same way you communicate with computers using a language they understand. जैसे हम humans आपस में बात करने के लिए एक language use करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मद्रासी, तमिल. ऐसे ही अगर हमें कंप्यूटर से बात करना है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज को यूज करते हैं, एंड इसी लैंग्वेज को तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. A programming language is defined as a language that is used to write codes or programs for performing specific tasks. ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे यूज किया जाता है लिखने के लिए कोड्स को, प्रोग्राम्स को और स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. Even programming languages has its own specific rules that a programmer or coder should follow. जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर या फिर कोडर फॉलो करता है जब भी वो किसी प्रोग्राम को लिखता है, एंड इसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं. There are many programming languages in the world. इस दुनिया में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं. जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सब के अपने अपने सिंटैक्स होते हैं. जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सब कन्वर्ट होते हैं एक लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर समझता है. मीन्स हम कुछ लिखते हैं, उसे जो कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, एंड देन उस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है. इसे ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स. और कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, उसे आती है बाइनरी नंबर्स की भाषा जिसे हम 0 और 1 कहते हैं. बेसिक, कोबल, पास्कल, फॉर्ट्रान, लोगो
C++, hashtag, then Java, PHP, JavaScript, Python, Scratch and Make code are some examples of programming language. तो यहाँ पे चिल्ड्रेन ये जितने भी नाम लिखे हैं ये सारे एक एग्जाम्पल हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. Now what is an algorithm? An algorithm is a set of instructions that can be followed to perform a specific system or task. Means एल्गोरिदम क्या है? ये कुछ इंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है कंप्यूटर को जिसे जो है एक के बाद एक फॉलो किया जाता है, सच एज सॉल्विंग अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम. जैसे कि कोई लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही हो. एल्गोरिदम इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. एल्गोरिदम को हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा जाता है, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स, ताकि हर किसी को ये स्टेप्स समझ में आए. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर कैन बी मोर देन वन लॉजिक टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे लॉजिक्स या फिर तरीके हो सकते हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम? क्या क्या एडवांटेजेस हैं इनके? सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इम्प्लीमेंट एंड मॉडिफाई. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज. मीन्स ये कंप्यूटर लैंग्वेज से बंधे हुए नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है. ये इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं फ्लो चार्ट्स में एंड देन इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम्स और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स में. नाउ क्या क्या रूल्स हैं लिखने के इन एल्गोरिदम्स के? तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं. एल्गोरिदम जो है हमेशा जो है स्टार्ट से होना चाहिए, शुरू. एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स सच एज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन शुड बी रिटन. राइट द स्टेटमेंट्स क्लियरली. जो भी स्टेटमेंट्स है उसे क्लियरली लिखें. ईच स्टेटमेंट मस्ट बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन. जितने भी स्टेटमेंट है उन्हें अलग अलग लाइन में लिखना चाहिए. ईच स्टेप शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज. जितने भी स्टेप्स है वो क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए. और लास्ट में जब हमारा एल्गोरिदम खत्म हो जाए सो वी शुड राइट स्टॉप एट द एंड. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिदम. यहाँ पे एल्गोरिदम बनाया गया है टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स. 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट. सेकेंड स्टेप है टेक 3 नंबर्स ABC. नाउ थर्ड स्टेप में आपने लिखा मल्टीप्लाई द 3 नंबर्स. नाउ स्टेप 4 है प्रिंट द रिजल्ट एंड स्टेप 5 इज स्टॉप. तो यहाँ से आपका एल्गोरिदम शुरू हुआ और स्टेप 5 पे जाके कंप्लीट हो गया. नाउ व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? So you have learned to write the instructions to solve the problem. आपने instructions को पढ़ा होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. The same can be done in pictorial form using the symbols. उसे ही हम पिक्चर के फॉर्म में सिंबल्स यूज करके लिखते हैं. फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स. ये क्या है? डायग्राम के फॉर्म में स्टेप्स को रिप्रेजेंट करना है टू बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. It is pictorial in nature and facilitates easy understanding of the solution. ये जो है पिक्टोरियल है नेचर में और easy understanding किसी भी solution को देता है. So one of the uses of a flowchart is to describe the sequence of steps. जो एक use है flowchart का वो है sequence को describe करना steps के. And logic of solving a problem before writing a computer program. Flowchart also helps in communicating the steps of the solution to others. Flowchart जो help करता है steps को follow करने में. Now flowchart symbols. कौन कौन से symbols यहाँ पे use किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको geometrical symbols मिलेंगे जिसे use किया जाता है different operations के लिए in order to show by connecting them with arrows. और इन सारे symbols को arrow के साथ connect किया जाता है. The standard symbol used टू रिप्रेजेंट आर एस फॉलो. अब हम चलिए पढ़ते हैं कुछ सिंबल्स के बारे में जो हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट बनाते समय. तो पहला आप देख सकते हो दिस इज द बॉक्स. ये एक आप कह सकते हो एक तरीके का ओवल बॉक्स है और ये इसमें हम स्टार्ट या फिर स्टॉप लिखते हैं. तो इसे स्टार्ट स्टॉप बॉक्स कहते हैं या फिर टर्मिनल बॉक्स कहते हैं. इसे यूज किया जाता है एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट. हमेशा बिगिनिंग और एंड में इसे यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट आता है आपका इनपुट बॉक्स. आप देख सकते हो एक पैरेललोग्राम शेप का है ये. इसे इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं. इसे यूज किया जाता है इनपुट या फिर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए.
फिर आता है प्रोसेस बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये क्या करता है, जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी एक्शंस उसे शो करता है, जैसे ऐड टू नंबर्स। फिर आता है आपका डिसीजन बॉक्स, जो कि डायमंड शेप का होता है। इसे यूज किया जाता है कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए और डिसीजंस को लेने के लिए। कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, येस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। फिर आते हैं फ्लो लाइंस, ये वो एरोज हैं जिनकी मदद से इन सारे बॉक्सेस को जोड़ा जाता है। सो ये जो एरोज हैं ये जो है कनेक्ट करती है फ्लो चार्ट को एक दूसरे से, और इनके जो डायरेक्शन आप देख सकते हो ये चारों डायरेक्शन में ये चल रही हैं। फिर आती है बारी कनेक्टर की। कनेक्टर क्या है, ये एक सर्कल है। फ्लो चार्ट में बी लॉन्ग एंड स्पैन वन और मोर पेजेस, मीन्स एक से ज्यादा पेजेस का ये हो सकता है। सो कनेक्टर को यूज किया जाता है जंप शो करने के लिए एक पेज से दूसरे पॉइंट तक। एंड इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट दैट आर स्प्लिट बिटवीन पेजेस। ये फ्लो चार्ट के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है जो अलग अलग पेजेस पे हैं। नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के कुछ रूल्स भी हैं, सो हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। पहला रूल कहता है जो डायरेक्शन है फ्लो चार्ट का वो या तो टॉप से बॉटम होना चाहिए या फिर लेफ्ट से राइट होना चाहिए। देयर शुड बी वन स्टार्ट बॉक्स एंड वन स्टॉप बॉक्स, सिर्फ एक स्टार्ट और एक स्टॉप बॉक्स होना चाहिए। एरो हेड इंडिकेट करता है कि फ्लो, जो डेटा का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो कनेक्टर है जिन्हें यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए ब्रेक्स को फ्लो चार्ट में, इसे अभी ज्वाइन किया जाता है एक पेज से दूसरे पेज तक। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आर एडवांटेजेस इन फॉलोइंग वेज। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, फास्ट है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फ्लो चार्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इज एन इम्पॉर्टेंट एड इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम इटसेल्फ, मीन्स एल्गोरिदम को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑलवेज ईजी टू अंडरस्टैंड अ फ्लो चार्ट देन अ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट को समझना ज़्यादा आसान होता है प्रोग्राम को समझने से। फ्लो चार्ट जो डिपेंडेंट नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। सो ये कुछ एडवांटेजेस थे फ्लो चार्ट के। सो चिल्ड्रन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट ऑल्सो। सम फ्लो चार्ट्स बिकम कॉम्प्लेक्स एंड क्लमजी। कुछ फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्लमजी बन जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। If a program is altered, then the flowchart needs to be redrawn completely. अगर प्रोग्राम को ऑल्टर किया गया है तो प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट है उसे पूरी तरह से बनाना दोबारा पड़ सकता है। As a flow chart symbol cannot be typed, जैसे कि जो फ्लो चार्ट का सिंबल है उसे टाइप नहीं किया जा सकता। रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जो फ्लो चार्ट का जो रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। द एसेंशियल्स ऑफ वॉट इज डन can easily be lost in the technical detail. So जो भी किया जा सकता है वो easily खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है टेक्निकल डिटेल्स में और कैसे उसे करना चाहिए। Now here you can see there's an example of flow chart. यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बनाना है to calculate the area of a square. एरिया आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर का, तो फ्लो चार्ट के थ्रू वो करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट बॉक्स आया, ऐसे आप सेम देख सकते हो, नीचे स्टॉप बॉक्स है। अब जो है इनपुट साइड एरिया का फॉर्मूला लिख दिया गया है यहाँ पे, देन अगेन प्रिंट एरिया एंड देन स्टॉप बटन। सो यू कैन सी दिस इज द फ्लो चार्ट, ऐसे ही हम इसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज सूडो कोड। सूडो कोड इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम इन द ह्यूमन रीडेबल मैनर। सूडो कोड क्या है, ये एक तरीका है जिससे जो एल्गोरिदम को ह्यूमंस के रीडेबल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। इट लैक्स द सिंटेक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें सिंटेक्स नहीं होता किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मेकिंग इट अंडरस्टैंडेबल टू एनीवन, ये क्या करता है, दूसरों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ सूडो कोड। द फॉलोइंग आर द फीचर्स। एसेंशियल स्टेप्स शुड बी इंक्लूडेड टू सॉल्व अ टास्क। एसेंशियल स्टेप्स को जो है टास्क को सॉल्व करने के लिए इंक्लूड किया जा सकता है। ईच सूडो कोड स्टेटमेंट शुड एक्सप्रेस वन एक्शन। जितने भी सूडो कोड स्टेटमेंट्स हैं वो वन एक्शन, किसी भी एक एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट शुड बी यूज। इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स हैं उन्हें यूज करना चाहिए। वाइल राइटिंग सूडो कोड लुक फॉर पॉसिबल सिनेरियोज। जब भी हम सूडो कोड लिख रहे हैं हमें जो भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं उस सब पे ध्यान देना चाहिए। नाउ कुछ बेनिफिट्स हैं सूडो कोड के।
It is natural language independent, making it easy for all the programmers to design in natural language. ये एक natural language है, independent है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा easy बनाता है, जितने भी programmers हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा easy है ये, क्योंकि एक natural language में design होता है. The focus on problem solving will be enhanced as a programmer does not have to worry about the syntax. जो focus है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है और इसकी वजह से जो प्रोग्रामर है ही डज नॉट हैव टू वरी अबाउट सिंटेक्स. इसमें जो प्रोग्रामर है उसे सिंटेक्स के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है. सूडो कोड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज इन द फ्यूचर. ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें जो भी प्रॉब्लम्स है जो फ्यूचर में आने वाले उन्हें समझने में हेल्प करता है. ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है रिव्यू करने में, स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने में. एंड दे आर शॉर्ट एंड क्लियर. ये काफ़ी ज़्यादा छोटे और क्लियर होते हैं. इट मेक्स राइटिंग कोड ईजियर. ये क्या करता है, राइटिंग कोड्स को ईजियर बनाता है. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट सूडो कोड. चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं कि कैसे हमें सूडो कोड्स लिखने चाहिए. सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, राइट अ सूडो कोड टू डिटरमाइन द सम एंड एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 6 सब्जेक्ट्स. हमें क्या करना है, सम और एवरेज निकालना है 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, बिगिन, देन रीड मार्क ऑफ सब्जेक्ट M1, रीड मार्क ऑफ सब्जेक्ट M2, रीड मार्क ऑफ सब्जेक्ट M3, देन सब्जेक्ट M4, देन सब्जेक्ट M5 एंड देन सब्जेक्ट M6. तो 6 सब्जेक्ट्स के हमें निकालने थे. Now we have written calculate sum M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 plus M6. Now calculate average. So यहाँ पे sum is divided by 6. Now display sum, display average. So दोनों चीजें display होंगी and then we have typed end. So this is how we can write the pseudo code. Now let's learn what is block coding. So block coding is a programming model that allows you to develop codes using instructions. ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो क्या करता है, अलाउ करता है आपको कोड्स को डेवलप करने में यूजिंग इंस्ट्रक्शंस दैट आर इन फॉर्म ऑफ विजुअल ब्लॉक्स. ऐसे इंस्ट्रक्शंस को यूज करके जो विजुअल ब्लॉक्स के फॉर्म में है. ब्लॉक्स आर द स्मॉल पोर्शन ऑफ कोड्स. ये जो ब्लॉक्स हैं ये छोटे छोटे पोर्शंस हैं कोड के. वाइल रेगुलर प्रोग्रामिंग यूजेस टेक्स्ट बेस्ड कोड. ये भले ये जो रेगुलर प्रोग्रामिंग है इसमें टेक्स्ट बेस्ड कोड यूज किए जाते हैं. ब्लॉक कोडिंग यूजेस अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट. ये जो ब्लॉक कोडिंग है ये क्या करता है, यूज करता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट बेस्ड कोड का, स्मॉल पोर्शंस ऑफ कोड. नाउ इट्स इजी टू लर्न सिंस इट नीडर रिक्वायर द मेमोराइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग सिंटेक्स, नॉट डज इट रिक्वायर टाइपिंग. ये काफ़ी ज़्यादा इजी है लर्न करने में, समझने में, क्योंकि ना तो इसमें प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को याद करने की ज़रूरत होती है, ना ही इसमें टाइपिंग की ज़रूरत होती है. वंस यू बिकम फेमिलियर विथ ब्लॉक कोडिंग, जब एक बार आप जो है ब्लॉक कोडिंग से फेमिलियर हो जाते हो, इट बिकम्स ईजियर एंड फास्टर टू लर्न टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लेटर. आप एक बार अगर से फेमिलियर हो गए तो आपको ये जो है करने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा. आगे फ्यूचर में भी आप इसे ईजिली कर सकते हो. Some of you may have learned block coding in the earlier classes using Scratch. Scratch में भी हमने block coding पढ़ी है. In this chapter we will learn how to do block coding, code programming with the help of Microsoft Make Code Arcade. Microsoft Make Code Arcade के थ्रू हम कैसे block coding कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे. So Make Code Arcade is a block-based platform that provides interactive and engaging programming experience. सो ये जो मेक कोड आर्केड है ये एक ब्लॉक बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, आपको इंटरैक्टिव और एंगेजिंग प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस लेने में हेल्प करता है. जो ऑब्जेक्टिव होता है मेक कोड आर्केड का, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है इज टू लर्न कोडिंग इन एन ईजी वे. ये ईजी वे में कोडिंग को लर्न करने में हेल्प करता है. टू ओपन मेक कोड आर्केड, अगर आपको मेक कोड आर्केड ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र पे जाना होगा. जैसे कि आपका मान लेते हैं वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज. अब वहाँ पे जाके आपको https://arcade.makecode.com ये साइट एंटर करनी है. आप जैसे इसे एंटर करोगे ये जो आपको वेब पेज दिख रहा है, होम पेज, ये आपको दिखने लगेगा. यहाँ पे आप देखो जो है आपको न्यू
प्रोजेक्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे यू कैन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच से आप नए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। हियर यू कैन सी क्रिएट अ प्रोजेक्ट। नाउ रीसेंट प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलेगा, हियर यू कैन सी नेक्स्ट टू द न्यू प्रोजेक्ट यू कैन सी दिस बटन रिसेंटली क्रिएटेड और ओपन प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको रिसेंटली क्रिएटेड या फिर ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। दैट कैन बी एक्सेस क्विकली, जिसे आप इजिली एक्सेस कर सकते हो। फिर बारी आती है इंपोर्ट की। इंपोर्ट में आप जाके क्या कर सकते हो, ये जो बटन है आपको हेल्प करता है प्रोजेक्ट में डिफरेंट चीज़ों को इंपोर्ट करने में। एल्सवेयर ऑन द वेब पे से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स ट्यूटोरियल। इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप विजुअल ऑफ लर्निंग गेमिंग प्रोग्राम। ये आपको स्टेप बाय स्टेप विजुअल्स देते हैं जिससे आप प्रोग्रामिंग को लर्न कर सकते हो। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट एंड नेम इट। आपको नए प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और उसका नाम लिखना है। तो जैसे आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके सामने ये एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हो गेम स्टिमुलेटर है, गेम कंट्रोल्स दिए गए हैं, स्टिमुलेटर टूल्स दिए गए हैं, डाउनलोड टू हार्डवेयर ऑप्शन है, ब्लॉक टूल्स हैं, सेव द प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोग्रामिंग वर्क स्पेस है, ये आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये आप देख सकते हो ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। होम बटन है, शेयर प्रोजेक्ट वाया यूआरएल के थ्रू आप प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हो। अनडू रीडू, जूम इन एंड आउट बटन। सो ये सारे जो है आपको जो स्क्रीन है आपके एडिटर विंडो की वो आपके सामने है। नाउ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दिस एडिटर विंडो आर एज फॉलोज। गेम स्टिमुलेटर, ये यूज किया जाता है रन और टेस्ट करने के लिए कोड। फिर आता है गेम कंट्रोल, इसे यूज किया जाता है मूव द प्लेयर को मूव करने के लिए। स्टिमुलेटर टूल यूज किया जाता है, इट इज यूज टू कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है ये। डाउनलोड, इट इज यूज टू डाउनलोड योर कोड टू द आर्केड, ये जो है यूज किया जाता है आपके कोड को आर्केड तक डाउनलोड करने के लिए। नाउ सेव, इट सेव्स द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट को सेव करता है। अनडू, इट रिवर्सेस द लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्शन, ये क्या करता है, रिवर्स करता है जो पिछला एग्जीक्यूटेड एक्शन है उसको रिवर्स कर देता है। ऐसे रीडू क्या करता है, इट रिस्टोर्स एनी एक्शन डन प्रीवियसली, जो भी एक्शन पहले किया था उसे रिस्टोर कर देगा यूज्ड बाय यूजिंग द अनडू बटन। सो जो भी अनडू बटन से हमने किया था उसे रीडू करने का काम रीडू का है। फिर जूम इन क्या करता है, आपके विंडो को जूम कर देता है। जूम आउट आपके विंडो को रिड्यूस कर देता है साइज उसका। शेयर प्रोजेक्ट बाय यूआरएल, इट इज़ यूज टू शेयर द प्रोजेक्ट विद अदर्स, इससे आप दूसरों से प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं। ब्लॉक टूल, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे जिससे आपकी इसमें बहुत सारे आपको ब्लॉक्स मिलेंगे जो आपको चाहिए होंगे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग वर्क स्पेस, इट इज अ कोडिंग एरिया वेयर यू कीप द ब्लॉक्स टू डेवलप द कोड, ये ऐसा कोडिंग एरिया है जहाँ पे आप ब्लॉक्स को रखते हैं डेवलप करने के लिए कोड। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम। लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम टू टाइप वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो चलिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। द स्प्लैश ब्लॉक इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज दैट यू input into its oval area। So splash box जो है यहाँ पे उसे यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि हमने कौन से कमांड्स को यूज किया है। So first we have to open make code arcade and click on the game option। हमें game option पे क्लिक करना है, तो ये है आपका game option। From the block tools and select splash block from it। और इसमें से हमें स्प्लैश ब्लॉक चूज करना है, तो दिस इज योर स्प्लैश ब्लॉक। नाउ ड्रैग द स्प्लैश ब्लॉक इन द वर्क स्पेस। अब जो स्प्लैश ब्लॉक था उसे हम यहाँ वर्क स्पेस में ले आए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव रिटन वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। इन ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड द ब्लॉक्स हैव टू बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन द स्टार्ट ब्लॉक। अगर आप चाहते हो कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाए तो उसे आपको यहाँ लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। And now click on the oval area inside the splash block। अब जो oval area है इसमें हमें क्लिक करना है और हमें ये टाइप करना है The screen in the game stimulator will immediately be updated to display the text।
हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पे वो अपने आप अपडेट हो जाएगी इसे जो है प्ले करने के लिए। सो वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वी हैव रिटन। नाउ नेक्स्ट कम्स वेरिएबल्स। So a variable is the name given to a memory location used by the computer program. So variable क्या है? ये एक नाम है जो दिया जाता है मेमोरी लोकेशन के द्वारा used by a computer program to store data and values, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करता है डेटाज और वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। This memory location contains values like numbers, text etc. ये जो मेमोरी लोकेशन है इसमें आपको वैल्यूज मिलेंगी जैसे कि नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए। A variable can store only one data value at a time. ये जो वेरिएबल है ये एक समय में एक ही डेटा को स्टोर करके रख सकता है। When a new value is stored in the variable, जब एक नई वैल्यू को स्टोर किया जाता है वेरिएबल में, its previous value gets overwritten. इसकी जो पुरानी वैल्यू है वो मिट जाती है। Each variable in a program has its own identity. जितने भी वेरिएबल हैं प्रोग्राम में उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। The user must give each of these variables a distinct name. यूजर को जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक डिस्टिंक्ट नेम देना चाहिए in order to identify them individually. इन्हें इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए। So data type of a variable is the next topic that we are going to learn. A data type represents the type of data stored in the variable. ये बताता है किस तरीके का डेटा स्टोर किया जा रहा है वेरिएबल में। The data stored in the memory can be of many types. यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया जा रहा है वो कई तरीके के हो सकते हैं। It indirectly helps the computer understand what operations need to be performed. ये indirectly क्या करता है? हेल्प करता है कंप्यूटर को ये समझने में कि किस तरीके के ऑपरेशंस को किया जाना है on the variable, वेरिएबल पे। Hence the declaration of a variable in a program contains two components. यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल का उसमें दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स टाइप। तो क्या क्या मिलेगा? नेम ऑफ द वेरिएबल और उसके टाइप्स। नाउ द बेसिक डेटा टाइप यूज्ड आर मेंशन हियर। यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स दिए गए हैं जो यूज किए जाते हैं। पहला इंटीजर, सो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें डेसिमल नहीं होता। दीज आर होल नंबर्स एंड कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। ये होल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर जीरो हो सकता है जैसे कि 0, 5, 65 माइनस 456 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है फ्लोट। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को विथ फ्रैक्शनल पार्ट से, एंड अ डेसिमल पॉइंट इज यूज टू सेपरेट द इंटीजर। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे यूज किया जाता है इंटीजर्स को सेपरेट करने के लिए। एंड such as 1.35 minus 8.6 and so on. Next comes character. यहाँ पे आप characters लिख सकते हैं and characters are used here to store a single alphanumeric character. यहाँ पे alphanumeric character को store किया जा सकता है। When a character can be, where a character can be any letter, जहाँ पे character कोई भी letter हो सकता है, number हो सकता है, symbol हो सकता है जैसे कि PJ, hashtag and so on. Next comes string. String जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, कैरेक्टर से भी, कैरेक्टर डेटा से भी ज़्यादा यूजफुल होता है और ये होल्ड करता है पूरी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। Therefore it can represent alphanumeric data and symbols. ये जो है alphanumeric डेटा को भी स्टोर करता है और सिम्बल्स को भी स्टोर करता है। A string can be null. String जो है null हो सकता है, मीन्स खाली हो सकता है। Just one character or many characters such as hello and so on, means ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। Now children, let's learn about arithmetic operators. Arithmetic operators are performed on 2 or more operands. ये जो है 2 से ज़्यादा ऑपरेंड से परफॉर्म किया जाता है या फिर न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस में परफॉर्म किया जाता है यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करके जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। When you perform these operations, जब आप इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, you get the result as another numeric value. आपको रिजल्ट मिल जाता है as another numeric value, means दूसरे न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में, और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन या फिर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। The various arithmetic operators using which you can perform arithmetic operations are, बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिन्हें यूज करके हम अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं।
उनके एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे एडिशन में हम प्लस साइन को यूज़ करते हैं एंड इसे यूज़ किया जाता है ऐड करने के लिए ऑपरेंड्स में a + b = 20, जहाँ पे एक a जो है 80 है और b 40 है। सब्ट्रैक्शन का साइन, दिस इज अ साइन, ये सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है, a - b = 40। मल्टीप्लिकेशन में आपको स्टार साइन लेना पड़ेगा, ये जो है यूज़ किया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, a × b = 3200। सिमिलरली स्लैश जो डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है, ये डिवाइड करता है दो नंबर्स को, a / b = 2। नेक्स्ट कम्स मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स जो है परसेंटेज साइन में होते हैं और ये क्या करता है, डिवाइड करता है पहले ऑपरेंड को दूसरे से और जो रिमाइंडर है उसे एज अ आउटपुट दे देता है। सो जब हमने a को b से डिवाइड किया वी गेट 0 एज द मॉड्यूल। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। So children, assignment operators are performed using the assignment operators means ये जितने भी operations होते हैं assignment operations, इन्हें assignment operator को use करके perform किया जाता है and this is equal to the assignment operator assigns a value to the variable। ये assignment operator क्या करता है, एक value दे देता है operator को and for example if you say a is equal to 2, it means that the value 2 has been assigned to a। So अगर हमने लिख दिया a is equal to 2, इसका मतलब कि जो 2 वैल्यू है वो a को असाइन की गई है। हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स है जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज इक्वल टू, ये क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है राइट ऑपरेंड को टू द लेफ्ट ऑपरेंड। सो y इज इक्वल टू 90, इसका मतलब 90 जो है वैल्यू है y की। नेक्स्ट है ऐड एंड असाइनमेंट। ऐड के साथ असाइनमेंट है, इसका मतलब इट एड्स द राइट ऑपरेंड विद द लेफ्ट ऑपरेंड। ये राइट को लेफ्ट के साथ ऐड करता है और जो वैल्यू है उसे दे देता है एंड रिजल्ट इज लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सो b plus इज इक्वल टू a इज इक्विवेलेंट टू b इज इक्वल टू b plus a। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ असाइनमेंट। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करता है, राइट ऑपरेंड को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करता है और जो रिजल्ट है उसे लेफ्ट ऑपरेंड की तरफ शो करता है। जैसे b माइनस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b माइनस a। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट। अब मल्टीप्लाई के साथ असाइनमेंट साइन हमने लगाया तो ये क्या करता है, ये भी मल्टीप्लाई करता है राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से एंड b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a इज इक्विवेलेंट टू b is equal to b multiply a। नेक्स्ट कम्स डिवाइड एंड असाइनमेंट। यहाँ पे डिवाइड साइन है और उसके साथ असाइनमेंट साइन लगा हुआ है। ये क्या करता है, डिवाइड करता है लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से और जो वैल्यू है उसे असाइन करता है। सो b के साथ हमने लगा दिया स्लैश, देन इज इक्वल टू a इज इक्विवेलेंट टू b इज इक्वल टू b/a। नेक्स्ट कम्स मॉड्यूल्स एंड असाइनमेंट। अब मॉड्यूल के साथ असाइनमेंट हमने यूज़ किया तो ये क्या करता है, ये मॉड्यूल्स को लेता है दोनों ऑपरेंड्स के और असाइन कर देता है उसे वैल्यू टू द राइट ऑपरेंड। सो b मॉड्यूल इज इक्वल टू a इज इक्विवेलेंट टू b इज इक्वल टू b मॉड्यूल a। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम्स। तो यहाँ कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनकी मदद से हम अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन दोनों के बारे में और अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट प्रोग्राम देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ ब्लॉक कोड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, ब्लॉक कोड लिखना है। सो सोल्यूशन क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले हमें हाइपरटेक्स्ट arcademakecode.com पे जाना है अपने ब्राउजर विंडो में, वहाँ जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे हमें रेक्टेंगल एरिया ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे हमें जाना है एंड देन क्रिएट पे क्लिक करना है। अब हमें वहाँ पे नाउ क्लिक ऑन द वेरिएबल, मेक अ वेरिएबल टू क्रिएट द डिस्प्ले। अब हमें जो है न्यू वेरिएबल नेम जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स में जाके मेक अ वेरिएबल में जाना है और वेरिएबल को क्रिएट करना है। पॉपअप विंडो हमारे सामने आ जाएगी, हमें जो भी नाम है वेरिएबल का उसे लिखना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके बटन। नाउ स्टेप 3 क्या है, सिमिलरली क्रिएट 2 मोर वेरिएबल नेम्ड b एंड ar। अब इसी के जैसे 2 और वेरिएबल हमने बना दिए b और ar। द वेरिएबल लिस्ट अपीयर बिलो द मेक
अ वेरिएबल ऑप्शन। ये जो वेरिएबल लिस्ट है आपको मेक अ वेरिएबल ऑप्शन के नीचे मिलेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लिक करना है, ड्रैग करना है सेट वेरिएबल ब्लॉक पे इन द कोडिंग एरिया 3 टाइम्स, 3 टाइम यहाँ पे क्लिक करना है। स्टेप 5 कह रहा है कि वी हैव टू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड चूज करना है वेरिएबल एल को यहाँ से इन द फर्स्ट सेट वेरिएबल ब्लॉक। नाउ वेरिएबल बी इन द सेकेंड सेट में हमें बी सेलेक्ट करना है और थर्ड सेट में हमें ए आर सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑल 3 ब्लॉक्स अंडर 1 स्टार्ट ब्लॉक, एक ही स्टार्ट ब्लॉक के नीचे हमें ये तीनों ब्लॉक्स लगाने हैं। टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल आई एंड बी यू नीड टू मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स। अगर आप आई और बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को चूज करना होगा। फॉर दिस क्लिक ऑन द ब्लॉक टाइप मैथ एंड ड्रैग द मल्टीप्लीकेशन ब्लॉक। अब हमें ब्लॉक टाइप मैथ्स पे क्लिक करना है और वहाँ से मल्टीप्लीकेशन को निकालना है बाहर और ड्रॉप कर देना है यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ 0 इन द सेट सम टू ब्लॉक एज शोन। ऐसे जहाँ पे जैसा दिख रहा है ना वैसे हमें इसे सेट कर देना है। फिर स्टेप 8 क्या कहता है, सेट द वेरिएबल वैल्यू टू द वेरिएबल आई एज 50। आई की वैल्यू हमने 50 रख दी, बी की वैल्यू हमने 30 रख दी। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है ब्लॉक टाइप वेरिएबल पे और वी हैव टू ड्रैग द वेरिएबल आई एंड ड्रॉप इट टू द प्लेस ऑफ द फर्स्ट 0 इन द मल्टीप्लीकेशन ब्लॉक। तो हमें अब ड्रैग करना है आई वेरिएबल को और उसे मल्टीप्लीकेशन बॉक्स में फिट करना है। सिमिलरली ड्रैग करना है वेरिएबल बी को एंड इसे भी हमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन ब्लॉक में फिट करना है एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट स्टेप 9 कहता है नाउ क्लिक ऑन द ब्लॉक टाइप गेम। अब हमें ब्लॉक टाइप गेम पे जाना है एंड सेलेक्ट द स्प्लैश ब्लॉक। अब यहाँ से हमें स्प्लैश ब्लॉक को यहाँ पे लगा देना है। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इट बिलो द सेट सम टू ब्लॉक एज शोन। तो जैसे यहाँ पे शो रहा है ऐसे हमें स्प्लैश ब्लॉक को लगा देना है। नाउ क्लिक ऑन द ब्लॉक टाइप। अब हमें ब्लॉक टाइप पे क्लिक करना है, एडवांस्ड एंड देन टेक्स्ट में जाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है द जॉइन ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसे अंदर लगा देना है स्प्लैश ब्लॉक के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। नाउ दिस यू कैन सी स्प्लैश ब्लॉक में कैसे हमने इसे हेलो वर्ल्ड को लगा दिया है। नाउ स्टेप 11 क्या कहता है, इन द जॉइन ब्लॉक। अब जॉइन ब्लॉक में हमें जाना है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें टाइप करना है जैसे कि हमें दिख रहा है। देन क्लिक ऑन द ब्लॉक वेरिएबल टाइप। हमें अब ब्लॉक वेरिएबल टाइप पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ड्रैग करना है AR वेरिएबल को एंड वहाँ पे उसे प्लेस कर देना है वर्ल्ड में। यू विल सी द आउटपुट ऑन द गेम स्टिमुलेटर स्क्रीन। आपको ये जो गेम स्टिमुलेटर स्क्रीन है यहाँ पे आपको जो है रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। So this was the chapter, children. Now let's move on to let's recall. A set of instructions that perform some action is referred to code or program, and the process of writing instructions to solve a program or perform a specific function on computers is known as coding or programming. A programming language is defined as a language that is used to write codes or programs for performing specific tasks. An algorithm is a set of instructions that can be followed to perform a specific task systematically, such as solving a logical or mathematical problem. A flowchart is a diagrammatic representation of steps to be taken to solve a problem. It's pictorial in nature and facilitates easy understanding of the solution. Block coding is a programming model that allows you to develop codes using instructions that are in the forms of visual blocks. Blocks are the small portion of code. A variable is the name given to a memory location used by a computer program to store data and variables. This memory location contains values like numbers, text, etc. So this was all that we have learned in this chapter. Now let's quickly move on to book exercise, and this is exercise time. So children, here A exercises, take the correct option. First one is a person who writes the code is called a
ऐसा पर्सन जो कोड्स को लिखता है उसे क्या कहते हैं? Is he called a writer, programmer, engineer or none of these? So he is called a programmer. Dash is always written in simple language and proper sequence. कौन सी चीज़ है जो simple language में और proper sequence में लिखी जाती है? So it is algorithm. Now the rest of the questions are your homework, children. Do them yourself. So these questions you have to do yourself, children. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. So children, here the first question is, programmer or coder uses different techniques to solve problems. Second one, a data type represents the type of data stored in a variable. So rest you have to do yourself. Now let's quickly move on to C part, which is write true or false for the following statements. So here the first one is, input output box is used to show action or processes. This is false. Flowchart is dependent on programming languages. This is again false. Now rest questions. Find out the answer yourself and do it yourself. Now children, with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.